ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତମକୁ ନୂଆ ସେଡ୍ୟୁଲ ମିଳିଯିବ ହେଲା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା। ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏକ୍ସାମ ଦେଇପାରିବି ତ ଯଦି ଏଟା ନହେଲେ? ଏଜ୍ କେତେ ଅଛି? ଶୁଭୁନି ବାବୁ, ଶୁଭିଲାନି। 1980 sir। 1990 ମାନେ କେବେ 24 34 ତ? 1980 sir, 1980 ରେ 34 ହବ ନାହିଁ sir। ଆଚ୍ଛା ମାନେ 34 ହବ କହୁଛନ୍ତି। ଏଜ୍ ଟା କେତେ କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି, ଏଜ୍ କେତେ? 43 ନା 33? ସେଟା 44 ଚାଲିଛି sir। ଦେଖ ବୁଝିଲି, ଏଇଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ତ ଏଥର? ହଁ ହଁ sir। ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇଥର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର କ'ଣ ହଉଛି ନା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଏଇ ବର୍ଷଟା ହେଲା। ବାକି ତ 43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲେ 43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ 44 କହିଲ, 44 ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ 100% ଆସିଲେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲେ। ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ବଢ଼ିବ ଏଇଥର ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ଚାନ୍ସ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ବଢ଼ିବ ହେଲା, ତେଣୁ ପଜିଟିଭ। ତାର ଆଗରୁ ତ 3 ଥର ଚାନ୍ସ ଦଉଥିଲା, ମାନେ 3 ଥର ଦେଇପାରିବ ବୋଲି, ଏଥର କ'ଣ କିଏ ଜାଣେ। ହଁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଆଗରୁ 3 ଥର ଦେଇଥିଲା ଯେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଜ୍ ବଢ଼ିବ ଯୋଉ। ବଟ୍ ଏଥର କ'ଣ ରଖିବ ମାନେ ଯିଏ ଦେଇଛି ଏଇଥରଟା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତା ପରଠାରୁ ଯେତେ ଏଜ୍ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଯେତେ ତାର ଆମର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଦେଇପାରିବ, ଏଭଳିଆ କଥା କୁହାହଉଛି ହେଲା। ସେ ଯେତେ ଏଜ୍ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଯେତେ ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ସେ ଦେଇଛି ଏଇଥର ପ୍ରିଲିମ୍ସ, ଏଭଳିଆ କିଛି କଥା ଅଛି ହେଲା। କରିବନି ଆଉ ଯଦି 43 ଭିତରେ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଚାନ୍ସ ହବ ବୋଲି ଟିକେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି sir, ଆଉ କ'ଣ ନା ହବ 100% ମାନେ ହବ ବୋଲି ମୁଁ 100% ଭାବୁଛି। ବାକି 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଫର୍ମ ବାହାରିବ, ତୁମର ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 23 ତାରିଖ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଫର୍ମ ବାହାରିଯିବ, ବାହାରିଲେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ହେଲା, କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ହଁ sir। ହଁ। ଦେଖ ମେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କଥାରେ, ଦେଖ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉ କଥା, ତାକୁ ରିପିଟ୍ ମାରିବି। ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଯିଏ ଡେ 1ରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ତାକୁ ତ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆଗରୁ ହାଲାକି ଲେଖିବାର ଥିଲା, ଯଦି ଲେଖିନି ତାକୁ ବି ଲେଖିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ତ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମେନ୍ସ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କେବଳ ଯିଏ ମେନ୍ସ ଲେଖିବ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବା ଦରକାର। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ସେଠି ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି କି ଫିର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଉଛି, କଥାଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଯାଇକି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ହଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ହେଉଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନୋଟ୍ସ ମେକିଂ ନିହାତି ଦରକାର। ନୋଟ୍ସ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ସାରା କଥା ମନେ ରହେ, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ଆସେ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସିଲାବସ୍କୁ ତମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ତମେ ରଖିପାରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନ ଲେଖିଛ, ଆବାଜ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି ବାବୁ ମୋତେ କହିଲ? ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ସର ତମେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିନ କିମ୍ବା ଆନ୍ସରକୁ ରିଭିଜନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲାବସ୍ ତମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲାବସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନ ଆସୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଡର ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଛାନିଆ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ତମକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତମେ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ ତମକୁ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଦରକାର ଏଜ୍ ଏ ଡେ 1। କଥା କ'ଣ? ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଫର ଦ ୟୁପିଏସସି मेंस एग्जाम रिक्वायर द स्ट्रेटेजिक अप्रोच दरकार बाबू। माने नुहे जे आम जमी प्रथम द्वितीय श्रेणी कि 10म श्रेणी पर्यंत एसे लिखि दौलु मन इच्छा जहाँ आसला गाईर आत्मकाणी कि बाकी जिनस से फर्मुला काम कर समय कम, तापर कथा कौन स्पेस कम। समय कम स्पेस माने जो जगह तुम लिख आउ वास्ट कवरेज, बहुत सारा जिन को कभर करने पड़ो। नेक्स्ट जिन कौन एग्जैक्टली जहाँ चाहूँगी पीएससी कि यूपीएससी ताके ही लिखा दरकार। खबड़ खबड़ लिखिकी खातार पूरे देले
ତମେ ମେ ବି ଘରେ ଆସିକି ମାର୍କିଂ କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ଲେଖିକି ଆସିଛି ହେଲା, ବଟ୍ ହୁଏନି ସେ ବାବୁ କଥା ହେଲା। ଖାତା ତମେ ନିଜେ ଲେଖିବ, ବିନା ପଢ଼ିକି ଥରେ ଲେଖିବ, 5-10 ଥର ପଢ଼ିକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯୋଡ଼ିକି ରିପୋର୍ଟସର କିଛି ଡାଟା ଯୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତମ ଖାତାକୁ ନିଜେ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ଆନ୍ସର କିମ୍ବା ତମେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ ଭାଇ ସାହେବ ମୁଁ ଜେନେରାଲ ପଢ଼ି କେତେ ଲେଖୁଥିଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲି, ରିଭିଜନ କଲି, 5 ଥର ଲେଖିଲି, ତାପରେ ସେଇ ଆନ୍ସରଟା ଲେଖିଲି। ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଭାବିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଲେଖି ହବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିକି ଚାଲ। ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଜେନେରାଲି ଭାବି ପାରୁନ, ତମେ ସମୟ ମିଳୁନି, ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଜାଇଟି ତ ରହିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏଟା ରହିବ। ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ରହିବ, କାରଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େନି, କାରଣ ଅପସନ୍ 4ଟା ଯାକ ସେଇଠି ଦେଇଥାଏ। ଭୁଲିଗଲେ ବି ସେଇଠି ତମକୁ ମିଳିଯିବ ଅପସନ୍ 4ଟା, ଆଖି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ମେନ୍ସରେ ସେଇଆ ନୁହଁ, ମେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ପେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଲେଖିବ ତମେ 40-50 ପେଜ, ବୁଝିଗଲା। ଗୋଟେ ପେଜର ଲେଖିବ ତାକୁ 40-50 ପେଜ, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତମ ମନରୁ ହିଁ ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଲେଖା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଲେଖିପାରିବ, ସେଇଠି ଭାବିକି କିଛି ଲେଖି ହେବନି। କୋଉଟା ଭାବିକି ଲେଖି ହବ, ଦେଖ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛ, এই କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସରର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ବାହାରିଲା, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନଥିଲ, ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଟା ହବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋ ରିଲେଟ୍ କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କିଛି ପଡ଼େନି ଦୁନିଆରେ, କିଛି ନା କିଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହବ। 100% ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଇନଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥିବ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବହୁତ ରେୟାର ଥାଏ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏସେରେ ତମକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟପିକ୍ ଜାଣିଦେଲେ କି ଭାଇ ସାହେବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଯାହା ନୋଟ୍ସ କରିছে ଲେଖି ଚାଲିଲ, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ମେ ବି କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଆସିଲାନି, ତମେ ଯୋଉଟା ପଢ଼ିଥିଲ ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଯିବ। କେମିତି ଯୋଡ଼ିବ ସେଟା, ତମେ ଗୋଟେ ସେଟା ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ, ଯୋଡ଼ିପାରେ, ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକଦମ ଭାବିକି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିକି ଲେଖିବ, ସେଟା ହେଇପାରିବ। ସମୟ କମ୍, ପ୍ଲସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଞ୍ଜାଇଟି ଥିବ ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରେସର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯାହା ତମେ ଅଲରେଡି ପଢ଼ିକି ଯାଇଛ ତାକେ ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ କୌଣସି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିକି ଚାଲେ, ଯେତେ ବି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଇଥାଉ। ଜି ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହିଲି, ଯେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିଛ। ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଯେଉଁ ମେନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ଖେଳ, ଆଉ କିଛି କଥା। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଲେଖିପାରିବନି, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲେଖିଦେବ, କାରଣ କ'ଣ ନା ଡିଫିକଲ୍ଟକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଇଛ, ଇଜିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଇନ। ଲେଖିପାରିବନି ତମେ ଯଦି ପଚାରିବ ସାର୍ ଲେଖିପାରିବନି କାହିଁ, ଏମିତି ଲେଖିଦେବୁ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି, 5ରୁ 10 ମନେକର 10 ମାର୍କ ଧରିକି ଚାଲିଲି ମୁଁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍କୁ, 5 ମାର୍କରୁ ତଳକୁ ଯାହାକୁ ମିଳିବ ज़्यादातर ତାକୁ ର୍ୟାଙ୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ର୍ୟାଙ୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ ମାନେ ମେନ୍ସ ପାସ୍ କରିବା ଫେଲ୍ କରିବା କିଛି ଫାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ। ର୍ୟାଙ୍କ ମିଳିବନି ମାନେ ତାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହବନି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇ କଟିବ। 5 ତଳକୁ ପ୍ରାୟ ଯାହାକୁ ମିଳୁଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକା ହବ ନା ପୁଣି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା, ସେଠି ଯାଇ କଟିବ। 5 ଉପରକୁ ଯାହା ରହିଲା ଜେନେରାଲି କୁହାଯାଏ 6-7 ହେଇଯାଏ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସ୍କୋର, 10ରୁ 60-70%। 60% ହେଇଯାଏ ଭଲ, 5 ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ, ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିପାରେ ତଳ ଆଡ଼େ। ବାକି ଯଦି 3-4 ଆସିଲା ଚାଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଲେ ତମେ ଲେଖିଦେବ ଯେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି, ସେ ତମକୁ ମାର୍କ ଦେବନି 5 ଉପରକୁ। 5 ଉପରକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଲେଖିବ, ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ 2-4 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଅଧିକା ଛୁଇଁବନି, ଲେଖିଲ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲ। ତେଣୁ ସପ୍ତାହକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ପାରୁଛ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି 2 ଦିନ, ସେଦିନ ହେଇପାରିବନି 2 ଦିନ ପାଖାପାଖି ରିଭିଜନରେ ସମୟ ରଖ। ରିଭିଜନରେ ସମୟ ରଖ, ରିଭିଜନ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାହବନି, ରିଭିଜନ ଭାବୁଥିବ ନାହିଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ ରିଭିଜନ, ନା ଦେଖିଦେଲେ ହବନି, ଲେଖିବ, ପଢ଼ିଦେଲ, ଖାତା ବନ୍ଦ କଲ, ଲେଖିବ। ଯଦି କିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବ, କିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଦେବ, ରିଭିଜନ।
ରିଭିଜନ ମାନେ ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ ରିଭିଜନ ନା, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ଦେଖିଦେବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଲେଖିକି ସାରି ହବନି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କଥା କୁହାଉଛି, ରିଭିଜନ ମାନେ ଲେଖିବା କଥା କୁହା। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଟାଇମର ଅନ୍ କରିଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିବ, ନହେଲେ ଘଡ଼ି ନେଇ ଆସିବ, ଟାଇମର ମିଳୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଅନ୍ କରିଦେବ। ତରବରି ହବନି, ଘରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତରବରି ହବନି, ନର୍ମାଲ ଲେଖ, ଦେଖ କେତେ ହଉଛି। ସବୁବେଳେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଲେ କେମିତି ହବ? ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ଟାଇମର ଅନ୍ କର, ଟାଇମରଟାକୁ ସାଇଡ୍ ରଖିଦିଅ, ତମ ନଜର ନ ପଡ଼ୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଆଖିରେ ଟାଇମର ଟାଣିଲାନି ତମକୁ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ବଢ଼ିଯିବ, ନାଇଁ ସରିଗଲା ଟାଇମ୍, ଅନ୍ କରିଦିଅ, ସାଇଡ୍ରେ ରଖ, ତାକୁ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖି ସାର, ତାକୁ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ 7 ମିନିଟ୍ରେ ଲେଖିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। 9 ମିନିଟ୍ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ, 10 ମାର୍କିଆ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ହାତ ସ୍ପିଡ୍ କରିବି, या फिर କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ୱାର୍ଡ ଦିଏ ନା 100, 120, 150 ୱାର୍ଡ ଗଣିକି ଲେଖନି ହେଲା। ଗୋଟେ ପେଜ ଲେଖ या फिर 2 ପେଜ ଲେଖ, ୱାର୍ଡ ଗଣି ହବନି ସେମିତି। ଗଣିକି ବସିବ କି ନାହିଁ, 1 2 3 4 150 ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଖତମ କାମ। ଏମିତି କିଛି ଗଣା ଯାଇନି ବାବୁ, ଲେଖ, ଆସିଯିବ ତମକୁ। ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ନା ମନ ଭିତରେ ହଜାର କଥା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆସିଯିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ କହୁଥିଲ ନାହିଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ମକ୍ ହବା ଦରକାର, ମେନ୍ସରେ ନା ତମକୁ ଲେଖିବା ଦରକାର, ସେଟା ମକ୍। ମେନ୍ସରେ ମକ୍ ସେଟା ଲେଖିବା ଦରକାର। ମେନ୍ସରେ ଦେଖ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରିଲିମ୍ ତ ଛାଡ଼, ଦିନିଆ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ସବୁ ଆନ୍ସର ତା ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ବାକି ସି ସେଟ୍ ତ ଅଙ୍କ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ତ ପଢ଼ିଦେଲେ ଜୀବନ ସାରା ସେମ୍। ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିଲିମ୍ରୁ କଟିଗଲା, ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ମେନ୍ସ ବେଳକୁ सर मैथ्स रे केतेବେଳେ ପାସ୍ ହୁଏ? ମେନ୍ସରେ ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି ବା ସେଇଆ, କହିଲି ଯେଉଁଟା ସେଟାକୁ ଆଭରେଜ କରିଦିଅ। ଆମକୁ ତାଙ୍କର 2000 କଥା କଥା କହିକି ଚାଲିବ, ତ 1200 1300 ଧରିକି ଚାଲ ମିନିମମ୍। 60%, ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ପୁରା, 60% ଧରିକି ଚାଲ। ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଥା। ମୋ ମନ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଯାଇକି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଜାଣିନଥିବ କି ହଁ ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପେପର ଅଛି, ଇଜି ଅଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଇଜି ଅଛି, ହେଇଯାଏ, ବଟ୍ ତଥାପି ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବିନି, ଯାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ପେପର ଏସେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେଖିଦେବି, ଆଉ ହବନି ବାବୁ। ସେ ଲେଖିକି ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ସବୁ ଲେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ଲେଖିପାରିବ। सर मेंस एक्सपेक्टेड डेट କେତେ ହବ? मेंस एग्जाम ର एक्सपेक्टेड डेट ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ପାଖାପାଖି ଧରିକି, 15-20 ପାଖାପାଖି ଧରିକି, ମାର୍ଚ୍ଚ 15-20 ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ଗଲେ ପୁରା 3 ମାସ, ପୁରା 3 ମାସ ଅଛି, 3 ମାସରେ ପଢ଼ି ହବ, 3 ମାସରେ ପଢ଼ି ହବ। जो प्रीलिम्स टा जो डिले ହେଲା, ଆମର जो ଅକ୍ଟୋବର ହେବା କଥା ଡିସେମ୍ବର ହେଲା, କ'ଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ଡିଲେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ, ଢିଲା ସାଇଡ୍ଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯଦି ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କି ଟାଇମ୍ ନେଇଯିବ କି? ଆମେ କୋଉଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲିବା? ଏବେ ମନକୁ ଆମେ ବୁଝଉନୁ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ 50 ଆଡ଼େ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ଆଗରେ, ଆମକୁ ତୈୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଧା କନସେପ୍ଟ ଏଠି। କିଛି ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତି ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି, ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ସେତିକିଟା ଡେଞ୍ଜର ନ ଆସନ୍ତା କି, ଆହୁରି ଏମିତି ଗଡ଼ିକି ଚାଲନ୍ତା, ସେମିତି ହୁଏନି ବାବୁ ଦୁନିଆରେ। ଅଛି କାଲି ପରୀକ୍ଷା ହବ, କାଲି ପରୀକ୍ଷା, ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାୱାର। ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେ ଧକେଇବ ନା, ସେ ସେତେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଜନ୍ମ ଆସିଛି ହବ, ବାକି କ'ଣ ଅଛି ଲେଟ୍ ହବ, ଲେଟ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ତମେ ଢିଲା କରିଦେବ। ସେ ମାସେ କ'ଣ ଲେଟ୍ ହବ, 3 ମାସ ପରେ ତାପରେ ଲେଟ୍ ହବ ନା, ତାପରେ ବି ତମେ କହିବ ନା ସାର୍ ସରିଲାନି, ହେଲାନି। ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେମିତି ରଖନି, ମାଇଣ୍ଡକୁ ରଖ, 3 ମାସ ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟାଇମ୍ ଅଛି, 3 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ଏତିକି ଦିନ ଏଇ ନୋଟ୍ସ କରିବି, ଏତିକି ଦିନ ଏଇ ନୋଟ୍ସ କରିବି, ଏତିକି ଦିନ ଏଇ ନୋଟ୍ସ କରିବି, ଏତିକି ଦିନ ରିଭିଜନ କରିବି, ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ 3 ଥର 4 ଥର ରିଭିଜନ ବାଡ଼ା ଦେଇଥିବି, ତମ ଖାତା। ବାକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ହବା ନବା ତମେ କାହିଁ ଭାବୁଛ? ସେ ଜିନିଷ ଦେବ 2 ଥର 4 ଥର, ପୁଣି କାହିଁକି ରଖିଛି? ନାଇଁ, ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଫେଲ୍ ହେଲେ ଘରେ ବସି ଅଛୁ,
ତ ନାହିଁ ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି? ଜାଣ, ଭୁଲ କର, ଶିଖ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧରିକି ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲ ଗାଡ଼ି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ଧରିକି ଚାଲ, 3 ମାସ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ସମୟ ନାହିଁ, ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ 50 ଆଡ଼େ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୁଅନି ହେଲା। ବହି ଖୋଲ କିମ୍ବା ଖାତା ଖୋଲ କିମ୍ବା ବାକି ନୋଟ୍ସ କର, ଦେଖ। 1000 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଲେ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଭାବୁନ ବର୍ଷେ ହେଲା ତମେ ଦେଖୁଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରି ପାରିଲା ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ। ବର୍ଷେ ହେଲା ଦେଖୁଥିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 1000 ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, 1000 ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରିବ? ସେତିକି ସମୟ ତ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଦିଅ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ଦିଅ, ବୁକ୍ସରେ ଦିଅ, ନୋଟ୍ସରେ ଦିଅ, ରିଭିଜନ୍ରେ ଦିଅ, ହବ, ବାହାରିବ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହବ ତ ଲୋକ ତମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପଇସା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ, ଚଲେଇ ନିଅ। ମାଇଣ୍ଡକୁ କୋଲ୍ ରଖ, ହବ ବୋଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଭିତରୁ ଭାବ। ଇଂଲିଶ ତମର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାବିକି ଚାଲ। ଓଡ଼ିଆ ତମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ରଖିଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିଏ ହିନ୍ଦୀ ରଖିଛି ତାର ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ ଅଛି, କମ୍ ମାର୍କରେ ପାସ୍ ହବ, ବଟ୍ ତଥାପି ପାସ୍ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ତ ଜାଣିଛ 1, 2, 3, 4 ଅପସନାଲ୍ ପେପର୍। ଏ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ କି ଏସେ, ଏଥିକ୍ସ, ଅପସନାଲ୍, ଇଏ ତମକୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଦବ। ର୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ବଡ଼ ର୍ୟାଙ୍କ ଦବ, ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଦବ। ଏମିତି ଆସିବ ଭଲ ମାର୍କ, ର୍ୟାଙ୍କରେ ଚଢ଼େଇବ। କାରଣ ପିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଏ 3ଟା ପେପର ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସରୁ ମେନ୍ସ ଭିତରେ ଆକି ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଢ଼ି ହବ, ପୂର୍ବରୁ ସାରିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ସାରିଛ ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ 3ଟା ପେପର କଥା କହିଲି ତାକୁ ଲେଖିଛି ଲେଖ, ରିଭିଜନ୍ ବାଡ଼ାଅ 2 ଥର। 6 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଶୁଅ ରାତିରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 6 ଘଣ୍ଟା କାଫି, ଦିନରେ ଯଦି ପାରୁଛ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଟିକେ ଗଡ଼ିଯାଅ ରିଫ୍ରେଶ୍ ପାଇଁ। ଏଥିକ୍ସ ପେପର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପେପର। ଏଥିକ୍ସ ପେପର ପାଇଁ ଆଖି କାନ ଖୋଲା ରଖ। ବହିରେ କମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିକ୍ସରୁ ବହିରୁ ପକାଏନି। ଥ୍ୟୋରି ପାଇଁ ପଢ଼, ଇଟ୍ସ କହିଥିଲି ବୋଧେ କ୍ରୋନିକଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ପଢ଼ିଦେବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଥିକ୍ସ ପେପର ନା ତମର ମାଇଣ୍ଡ ଜଜମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଳିଆ କଥା ସବୁ ଏଥିକ୍ସରେ ଥାଏ। କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଥାଏ, ସିଚୁଏସନ୍ ଦିଆହେବ, ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଥା କୁହାହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦିମାଗ ବାଲା କଥା, କିମ୍ବା ଚାଲାକ ଟିକେ ହେବା ଦରକାର, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଦୌଡ଼େଇବା ଦରକାର, ବାକି ହେଇଯିବ କଥା। ପେପରକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏସେ ପେପର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିରେ। ସେ ପେପରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲେଖିବ ନା 2ଟା ଖଣ୍ଡେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଅଲଗା ଅଲଗା ପେପରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସର୍ଟକଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେବ, ବା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରି ଲେଖିବ। ଏସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିବ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ज़୍ୟାଦାତର ତମକୁ ଥିଓରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ପାରାଗ୍ରାଫ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଥିଓରି ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଭେରିଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦରକାର, ମୋ ଆଇଡ଼ିଆ ସେଠି ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦମ ପୁରା ଥିଓରି କହନ୍ତିନି, ଏସେରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ କଥା କିଛି ଭାବୁଛି ନା ଏସେ ଶୁଣିକି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ହବନି, କି ଦେଖିବ, ଟାଇମର ଅନ୍ କରିବ, ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଲି ମନେକର ଜିନୋସାଇଡ୍, फिर रशिया यूक्रेन वार, लिखिमे से जानी जी कथा फास्ट लिखिदी ये पन्ना मो कलम रहीगला चललानी। को पार्ट गुड़ा जोड़िले हम, को पार्ट जोड़िले हम, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो स्टार्टिंग जिनस। इंट्रोडक्शन कौन जोड़ी हो पार, इंट्रोडक्शन माने जी जिस्ट हवा कथा से हम, इंट्रोडक्शन बॉडी लिखिदेला हम, मेन कथा बॉडी की आसो। बॉडी विभिन्न प्रकार कथा, रिपोर्ट, एनालिसिस, थॉट, सब जिन कौन बहुत कथा अच्छे मैंने नुहे माने ये हेनी हो पारे ये लिखा 10 पेज 15 पेज अधिका हो काटी छाटी लिख बेले बेले डाउट थाए कथा लिखा पड़ो। मैटर कौट आस, मैटर बहुत अच्छी, पॉलिटिकल एंगल अच्छी, सोशल एंगल अच्छी, इकोनॉमिकल एंगल अच्छी, नेशनल एंगल अच्छी। जी तुम बही पढ़ुच ना, जी प्रकार बही सब पढ़ुच से बही सब एंगल अच्छी, एंगल जो मिसेब 8 माने लाइन
तुमको माने जगह कोलेबनी सरी जीव जगह इफेक्टिव कथा को सेମିତି ଲେଖିଲେ ତ ହଜାର କଥା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେବି ତୁମେ ଶୁଣିଯିବା ଇଟ୍ସ ଓକେ ବୁଝି ହେଉଛି କଥା ବଟ୍ until unless you just practice you cannot write in the exam କି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ଏକ୍ଜାମରେ କିଛି ତାପରେ କିଛି ବଟ୍ ତଥାପି ମେନ୍ସରେ ଟିକେ କମ୍ ଭୁଲା ଯାଏ କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ନା ତମେ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିବ ତ ଆପେ ଆପେ ସେଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତମେ ଏବେ ଉରି ହେଇଯାଉଛ ହେଲା ମେନ୍ସରେ ଭଲ ହୁଏ ଲେଖାଟି ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଛ ନା ବଢ଼ିଆ ସେ ଲେଖିବେ ଜେନେରାଲି ଭୁଲିବେନି ଆରେ ବାବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲା ନା ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଆମେରିକା କଥା ଭାବୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମକୁ ଏଠି ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ତମେ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ क्वेश्चन एठी देइछि हला इंटरनेशनल रिलेशन आ गोटे क्वेश्चन ला फोटोसिंथेसिस कोठा आसी माइंड कोड पड़ला बट एठी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेखो माने लेखुछ माने से ऊपर चिंताधारा चल तुमके डिस्टर्ब करे नहीं कि क्वेश्चन आउ चेंज नहीं किछ सेटा गोटे पॉजिटिव चीज माइंड भी गोटे वे रे फ्लो रे चले डिस्टर्ब न हो आराम से बढ़ा से प्रैक्टिस करथिया दरकार रिवीजन करथिया दरकार लेखार प्रैक्टिस दरकार हैंड राइटिंग देख भल खराब मुझे कथा कहूनी यदि हैंड राइटिंग खराब अच्छे ना बड़ बड़ लिखिदेव एग्जामिनर बाबू मुझे सत कथा कहूँ अनेस्टली कहूँ मैंने नेजरा मेजरा कर लिखिले जेनराली भारी कष्ट हुए मार्क कम दिए जानव जब टीचर फिचर किए अच्छे तुम बुझीपड़ मो कथा को सत कथा फैक्ट जब हैंड राइटिंग खराब अच्छे टी बड़ बड़ लिख तुमको डायग्राम माध्यम बुझी देवाई चेष्टा कर भल कम लिखापी चेष्टा कर जो दरकार से लिख मैंने लेखार कम कर बाकी करदेवी ना सेमती हम बड़ लिख डायग्राम लिख नेजरा मेजरा कर कटा छटा ये सी हजार प्रकार गुलागुली एमती भल लगे से ठीक है कौन लिखी लिखी चल आगू चल तुम एत परिश्रम कर सब जाच देखीच बट बस लेखा टाइम बेतला से जिन भी देख माने रिवीजन माने इच एंड एवरीथिंग हैव टू कंसीडर निजे टीचर होते निजे खाता चेक कर मैं केते मार्क का देता तो पिला कहीं है कि ना हो मत जानी चाहिए कथा तो बाबू से बाबू दिव्य बाबू जाऊँ ना बाउंस हो सर ऑप्शनल पेपर गुडे सर स्टार्ट करबे के जल्दी ऑप्शनल मु कहली आपनकर बदे होम साइंस ना माने सोशल हां हां सर होम साइंस पढ़े होम साइंस पढ़े आ 2-3 जण अछि होम साइंस मु करबे एबे जस्ट रिसेंट स्टार्ट होम साइंस स्टार्ट कर दे सर कारण एठे तो समस्तंकर अलग अलग ऑप्शनल थिबो ज्योग्राफी जार अछि ऑलरेडी क्लास रे पढ़ाई या फिर मु स्टार्ट करी आ फिर मूल स्टार्ट करी बाकी सोशियोलॉजी न पढ़ा हेले मध्य चेष्टा करा नोटबुक तुमको देकी मैनेज करा बाकी ऑप्शनल जहाँ अच्छे तो मैंने निजे पढ़ा को पड़ो सोशियोलॉजी जियोग्राफी होम साइंस ये 3टा जी ऑप्शनल रखी एटलिस्ट होम साइंस जियोग्राफी मिल जाव प्राय सब नोट्स तुम जियोग्राफी होम साइंस देवी दिया सर होम साइंस रो नोट्स टिके जल्दी प्रोवाइड कर देबे के कारण सर नोट्स वगैरह भी बने के सब पॉइंट्स गुडा भी ऐड करिवार अछि सब टिके टाइम टेकिंग बिल्कुल बिल्कुल सेटा करिवो जस्ट मु रिसेंट स्टार्ट बताओ से गुटे दिना ना मैं मेंस पे रखे बाकी भी 4-5 दिन पाखो प्रीलिम्स पे बा इंटीग्रेटेड अप्रोच रखी मिल जाओ बाबू बहुत रिसेंटली नेक्स्ट असमु ओके तो कहया कथा हला सब पेपर को टच करके चलो है ना सब पेपर को टच जियोग्राफी रे तुमको मैप उडा मैप पके देला त लाउस रे पके देला जो हमर कोन सेटा लैंड लॉक एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी रो डिफरेंस कोन अछि बाबू सर एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी रो डिफरेंस कोन अछि एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी मोस्ट प्रोबेबली ये पाखा पाखी जनरली हैला डीपली एनालिसिस न कले भी मोस्ट प्रोबेबली एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड ही कथा आसीबो सोशियोलॉजी माध्यम से भळा कथा आसीबो बट अच्छे डिफरेंस किछ अछि हैला मोस्ट प्रोबेबली जो डबल जतले थिला नि मतलब डबल थिला जतले दीटा ऑप्शनल लॉग पडुतला तो एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी संगे दउ नथिला हैला दैट इज द रीजन
दैट इज द रीजन कारण सेम रिलेटेड कथा तुम पढ़ियो तुम रखिछ कौन एंथ्रोपोलॉजी ना सोशियोलॉजी सर मोर एंथ्रोपोलॉजी अछि तो से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली आसीबो केमिति ह्यूमन सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह आरंभ होई बको आज्ञा ह्यूमन बीइंग रो इवोल्यूशन टा हाँ अछि तो कथा को आउची इफेक्टिव आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस यूपीएससी माने एटा ओपीएससी लेकिन चला सांगरे हला मेंस एग्जाम रिक्वायर द स्ट्रेटेजिक अप्रोच स्ट्रेटेजी वाट लिखा है बड़ा इंपोर्टेंट अप्रोच एज द एग्जाम इज डिजाइंड टू बोथ योर नॉलेज एंड एबिलिटी टू प्रेजेंट कोहेरेंटली एंड कंसाइजली माने कोन कोहेरेंट एंड कंसाइज माने कोन बाबू ठीक कहबो कविता को कोहेरेंट एंड कंसाइज नहीं कौन इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ जाओ इंग्लिश पेपर हो सर ଟିକେ ଏମିତି ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସରଟା ମାନେ ବେଶୀ ଏଲାବୋରେଟ୍ ନ କରିକି ଟିକେ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର କରିବା ଟିକେ ମାନେ ସମରାଇଜ କରିକି ଆନ୍ସରଟାକୁ हाँ वेरी गुड एटा एटा कोन एटा कंसाइज ना कोहेरेंट देटा भीतर ना से देटा जक मिसी की तुम जोडा करले से कंसाइज कोहेरेंटली बाबू को कंसाइजली कोहेरेंट कंसाइज तो मैडम कहले जन्म बाबू को हाँ हाँ ठीक कथा कह कह बाबा फिर ठीक अच्छे जन्म बाबू को कविता बाबू को विभूति अच्छा था विभूति बाबू हां सर गुड मॉर्निंग बोलो सर वही तो सर सॉरी सर चलो चलो ठीक है हाँ आ किए कहला कहन किए मन कहला कह Sir, clear, easy to understand and logic. हाँ हाँ से भाया किसी कथा बाबू देख कोहेरेंट माने तुम देख माने तुम गोटे कथा लिखुच गोटे एसे लिखुच सागे सागे से मनकर लिखुच कि हाँ भारत सहित रशिया रिलेशन भल है तो रशिया से मिडिल स्टांस रखिकी यूक्रेन सहित मिसला मोदी विजिट है रशिया सहित भी विजिट होची आम G7 बसुचे सांगरे कि G22 रे बसुचे सब जिन हो सागे लिखुच आनी कहीदेव ना रशिया बैक्टेरिया भाइरस भल ना से गच बढ़ी पारनी आर्टिक को प्रकार कथा मैंने लेखार गोटे फ्लो आसवा दरकार कोहेरेंटली कथा कह लेखार गोटे फ्लो आसवा दरकार कि तुम खातार लिखुच ना तुम खाता अनुसार इभाल्युएटर चली से अनुसार माइंड भी से अनुसार चलती এটা শর্ট কোশ্চেন নয় যে এটা ঠিক মারিব সেটা 5 নম্বর ঠিক এটা বিটা সিটা ঠিক সেমতি নয় লং কোশ্চেন গোটে তুমি গোটে ফ্লো রে ଯିବା দরকার जो कथाटा लिखिछ से कथार जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखिछ कि नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिछ ता रिलेशन हवा दरकार जे एकदम रिलेशन बदलुची किछि गोटे तार हेडिंग देवा दरकार कि भाई साहब हां एबे हेडिंग रे कथा या रहला तबे ए विषय लिखि जाउची कि हमरा जनरली एनवायरमेंटल इशू इन द रशिया एग्जामिनर बुझिला कोन नाही भाई साहब ये एबे लिखुतला जो इंटरनेशनल रिलेशन तापर हेडिंग देला ये कि भाई साहब ये किसी एनवायरमेंटल इशू पर लिखिया ପାଇଁ चाहू माइंड को से नबो नले तमे गोटे सेंटेंस लिखलो तापर सेंटेंस रे अलगा तापर सेंटेंस अलगा तापर किछि ताळमेळ खाउनी से पढ़िया लोक पागल आइ जो भाई खाता केमते पढ़ी कोठु आरंभ करी कोठु शेष करी लाइक तमे जानि छ सब कथा को पॉइंट कोठु थइबो तुमु जाना नै जेना बाटा जानि छ कथा पढ़ी जाई छ मन इच्छा और कोहेरेंट ना जगार रखो जना ना कोहेरेंट माने गोटे प्रॉपर फॉर्मेट रे तम माइंड गोटे चलिया दरकार भाषा फ्लो हवा दरकार गोटे फ्लो हवा दरकार कंसाइज माने लिखिया कथा लिखियो ता माने दिस इज द ये दैट इज द ये सब जिन लिखिकी ग्रामर लिखिकी खाता पूर्व ग्रामर आवश्यकता नहीं तुमको जीएस रे बिल्कुल 100% ग्रामर भूल लिखिले इट्स 100% अलाउ ग्रामर कथा को पाठ भूल है ग्रामर कौन सा आवश्यकता नहीं केवल पॉइंट लिखले काम चलो पॉइंट लिखले काम चलो से कथा कहते कंसाइजली लिखियो कंसाइजली फेरेंट कौन सिस्टम थी दरकार को पॉइंट पर कौन ये सब जिन आसो
वो पॉइंट पर कौन आसिया दरकार एंडिंग केमिति होवा दरकार ए वगैरह पड़े ओके here is the key things to while the writing the answer for the UPC understand the question properly बहुत बड़ा कथा मो आई थिंक प्रिलिम पूर्व एक कथा को वीडियो करते क्वेश्चन पढ़िबो माने 50% आंसर आइगला क्वेश्चन पढ़ी कि यदि बुझी देला ता डीप कथा 50% आंसर तमर सेठी सॉल्व जी हाँ ठीक कथा सुन क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ियो भलसे पढ़ो क्वेश्चन चाहूची कौन तुमठू हमें पढ़ी जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन होगा सेठू ये पचारि नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किंबा आमे कहि परिबा एथिक्स इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम कहते ना सी जहाँ पके पको मु तो पढ़ी आछि मुझे लिखी होबनी बाबू नेगेटिव मार्क नेगेटिव जो क्वेश्चन सी जहाँ पचारि आमको सेटा बुझा पड़ो ताके ही लिखा पड़ो जदि आमको जना ना चेष्टा करवा मैनेज करने बट क्वेश्चन जो धारा कहेरेंट फ्लू मागी क्वेश्चन हवा दरकार आम फ्लू हवा दरकार नुहे लाइक मनकर आम अलग पढ़ी जाइए क्वेश्चन अलग पड़ी से क्वेश्चन जोड़ा पड़ी से फ्लू रे जीवा दरकार जदि पारुच टिके 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 तुम जोटा को जानिछ ताको जोड़ी देकी बट क्वेश्चन जहाँ मागी से फ्लो रे जाइकी ताको एंड करिया दरकार अलग क्वेश्चन जदि पारुच जोड़िबा पई मझी मझिरे रिपोर्ट जोड़िया पई डाटा जोड़िया पई मझी मझिरे जोड़ी के आनी पारे किसी कथा नहीं बट क्वेश्चन मागी थिवा क्वेश्चन अनुसार कोहेरेंट कंसाइज हवा दरकार नॉट तमे जानिथिबा अनुसार नेक्स्ट ये वर्ड इंपोर्टेंट लिखाई छी read the question carefully make sure you understand what is being asked कौन पचरा है आइडेंटिफाई द की कमेंट्स जिनस आम क्वेश्चन लिखा लिखिले जाना एक्चुअली केमी कह जाए कथा डिस्कस लिखाई डिस्कस दिस थिंग्स फिर एनालाइज दिस थिंग्स फिर इवैल्यूएट फिर क्रिटिकली एग्जामाइन आगे कौन बड़ जिनस आम या गोटे गोटे क्वेश्चन मुझे देदेवी देख देखला कहीदेवी ना क्रिटिकल एनालाइज माने कौन 100% क्रिटिक्स कर हाँ यहाँ हम जी यहाँ हेनी कहीं हेनी से हम से डिस्कस माने से सब जिन तुम किसी दरकार नहीं जहाँ अच्छे डिस्कस कर दियो जहाँ अच्छे डिस्कस कर दियो एनालिसिस माने आउ टिके तुमको भितर जा पड़े एनालाइज करियो कौन पाई हला कौन पाई हलानी इवैल्यूएट भल कि खराब ताको कुह तुम क्रिटिकल एनालाइज या होते या होता या होते या होता एकदम 100% लास्ट स्तर जोटा क्रिटिकली एनालाइज एग्जाम तुम मतामत ये सब जिन क्रिटिकल एनालाइज कथा तेणु क्वेश्चन जो अनुसार मांगी से अनुसार एक्सप्लेनेशन धीरे 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 बढ़ा लाइक क्वेश्चन आम लिखेबा या लिखिले सब जिन तुम लिखिकी निजे बुझीपर अधिका कथा break down the question divide the question sub part if applicable to ensure the answer is respect aspect माने सब पार्ट मन कर गोटे क्वेश्चन बही मिल बाबू देव केस ओ लंग ये सब तुम प्रीवियस ईयर ना क्वेश्चन पकईला कौन मेन्स मेन्स 10 वर्ष आई थिंक देती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखी 10-15 वर्ष क्वेश्चन देती मेन्स रे कौन पकई बही किनदेव तो देखियो क्वेश्चन लगे मन गोटे क्वेश्चन पढ़ी Answer the following about 125 word each. Discuss the major regulation enacted by the British ruler to curb the freedom of press in India. History question paper 1. Second लिखी पुणी access the contribution of Ishwar Chandra Vidyasagar to the making the modern India. प्रेस को कंट्रोल को आने अंग्रेज मैंने कौन कौन करते एक्ट कथा कह सब जिन लिख फास्ट तापर ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंट्रीब्यूशन मॉडर्न इंडिया रे सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट कौन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर विवाह प्रथा बाकी जो मैरेज कथा क्वेश्चन जहाँ मागुचे ना जिन देखिए हालांकि ये गोटा इजी अच्छी हिस्ट्री क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहे कि ना बट क्वेश्चन को देखा पड़े जब पारुच क्वेश्चन में गार मार दियो क्वेश्चन गार मार देखिए यही पॉइंट को फोकस कर यही पॉइंट को फोकस कर तार रिलेटेड लिखाई चेष्टा ओके देन हाँ
एनालाइज और क्रिटिकली एग्जामिन भितर देखो एनालाइज माने तुमको गोटे जिनस को एनालिसिस करियो पड़ो डिस्कस देखो ये जो फास्ट लिखा है देखो डिस्कस देख लिखा है डिस्कस रे तुमको एनालिसिस करियो किसी आवश्यकता नहीं एनालिसिस रे ओडिया कौन हो परियो तुम देखो बट इंग्रजी मीनिंग है एनालिसिस रे प्रॉपर गोटे जिनस को ना एनालिसिस करियो कि हाँ एटा हैला कौन पई हैला एटा हैलानी कौन पई हैला क्रिटिकल जो एनालिसिस ना आहुरी तमर सेठी मंतव्य करना एटा हेइथिले आहुरी भलो होइथांदा सेटा हेइथिले आहुरी एनालाइज रे चेंज होइना था एनालिसिस रे प्रॉपर जो जिंस हेइछि ना प्रॉपर एनालिसिस कर दिया जाता अच्छा एटा हेइछि एमति हेइछि सेमति हेइछि क्रिटिकली एनालाइज ना तमर सेठी मते मंतव्य दियो सेठी ना अच्छा एटा जदि एटा हेइथांदा ना आहुरी सेटा भलो होई परथांदा जदि रशिया एई काम करथांदा यूक्रेन में भी आहुरी सपोर्ट अधिक मागी परथांदा तो क्रिटिकल एनालाइज रे आहुरी डेप्थ को जीवा कथा कहूँ सिंपल कथा एनालिसिस रो जो जिनसटा अछि प्रॉपर ताकू ना एनालिसिस कर कि कौन एक्चुअली हेइछि जिनस डिस्कस माने किछि एनालिसिस नै डिस्कस माने केवल लेखिबो रशिया यूक्रेन वा एबे स्टार्ट हला युद्ध रशिया बाण फिंगिला ये एकला लास्ट जाके एंड कर दियो डिस्कस माने एनालाइज माने कोन एनालिसिस माने कोन हां जो क्रिटिकली एग्जामिन रे पॉजिटिव भी और नेगेटिव दुईटा जाको चैलेंज सब लिखि बिल्कुल 100% लेखा क्रिटिकल एनालाइज माने से चाहूची तुमठर एक्चुअली हम आइडिया चाहूची बाकी डिटेल्स चाहूची से क्रिटिकल रो मीनिंग है डिटेल्स पॉजिटिव नेगेटिव तुमरे लिखले कोन हेता न होइतले कोन हेता तुम व्यू कोन सेतिरे इच एंड एवरीथिंग एनालाइज रे मे बी एक्चुअली सेतिकिटा तुमको क्रिटिकली करियो पड़ियो जस्ट एनालाइज करी छाड़ इवैल्यूएट माने कोन इवैल्यूएट माने तुम देखियो कि इवैल्यूएशन करियो अच्छा एटा हेइतला इतपै जिंस है इवैल्यूएशन करियो युद्धटा हला कोन तमे लागुची कोन इवैल्यूएशन करियो सेतिरे कि इवैल्यूएट करै छु जिंस कोन हला नती लोक मले किछु जिंस हला एक कथा को इवैल्यूएशन करिया कथा यदि हमें सेठी अलग अलग प्रकार किछि लगै थाते कोन बाण S400 अलग अलग कि मिसाइल ए जिंस हेइता कि एति हला कथा कैजुअलिटी कथा को रिलेटेड इवैल्यूएट सर एमती गोटे क्वेश्चन रो जदि हमको गोटे क्वेश्चन पचारि कि जदि लास्ट रे इवैल्यूएट कहि दोची क्रिटिकली एनालाइज कहि दोची ओनली डिस्कस कहि दोची तो आंसर ता माने चेंज हे जेबो बिल्कुल हम चेंज जो आंसर फ्रेम करबा कथा चेंज सर एमती सर टिके गोटे क्वेश्चन को सर एमती धरि माने नै कि गोटे कंपैरिजन माने लेखेबी से कथा कहूँ बुझिली तुम जेटा कहूँ ना सेटा बिल्कुल मु रखी सेटा लेखेबी सेटा लिखिला बेले आम गोटे नहीं 8-10टा क्वेश्चन तापर लिखा एनालिसिस करवा है बहुत इजी जिनस थ्योरी पार्ट जेहेतु लेखा है तुम डाउट लगे कौन लिखा पड़ो है ठीक है मुझे एंगल देवी अरे मतलब लिखी कहीदी तुम जना ना तथा लिखेले से एक्चुअली से जिन तुमको क्लारिटी आस ना थ्योरीटा अच्छे बुझी जाओ लिखे এটা তো মেন জিনিস না এই জিনিসটা एक्चुअली মেন জিনিস याकू न देखले तुम लिखि परिबन क्वेश्चन ओके ब्रेक डाउन द क्वेश्चन कथा को आउची तो क्वेश्चन को भांगियो मु कहली जेमति बड़ बड़ क्वेश्चन देथे तो भांगियो कोन मागिची कोन रिसर्च मागिची कि एनालिसिस मागिची हमरो बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट मागिची कि तमरो आइडिया मागिची व्यू मागिची ई सब जिनिस कोन मागी ताको पार्ट पार्ट कर दो तुमसे लिखिया पे चेष्टा ओके स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन कथा को इंट्रोडक्शन बॉडी इसलिए ऐसी कथा लिखा हो बॉडी रे जानि इंट्रोडक्शन ले शॉर्ट लिखियो बट तुम एक्चुअली कौन ना भीतर लिखिया पे चाहूछ इंट्रोडक्शन ले गुटे जो लाइन 2 लाइन लिखियो ना कुछ आसी जीवा दरकार हम न बुझी परिया दरकार भाई साहब ई पिला ए वे रे जीवो इंट्रोडक्शन introduction provide the brief and relevant introduction that sets a context avoid lengthy introduction जगह भी नहीं तुमको ये भी ठीक नो तुम ऐसे लिखो ना इंट्रोडक्शन नॉर्मल छाड़ी देखिए भी खाता देखिए थी कि नहीं जना नहीं सारा टपर माने मध्य से माने चिंता खाता रे लिखे देवी देखियो छोटा इंट्रोडक्शन ले ई लाइन खंडे इंट्रोडक्शन लिखियो कि अच्छा ये जिंस या avoid lengthy introduction. It should directly address the core of the question.
କଥା ଆକ୍चुअली ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା ଆମେ ସେଇ ପାର୍ଟରେ ଯିବୁ। ବଡି ଏଇଟାରେ ଆକ୍ଚୁअଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଦିମାଗ ଏଇଠି ଲାଗିବ। ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର ଆନ୍ସର୍ ସୁଡ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ସ। ବା ତାକୁ ତମେ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ ବାବୁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିଛି କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ। ମେନ୍ସ ଆନ୍ସର୍ ଆଇଡି ଲେଖିବାରେ ମୁଁ ମୋ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବି ତମେ ତମ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବ ତା ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବ। ବଟ୍ କଥା ଉଠିଛି କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ଶୋ ହେବା ଦରକାର। क्वेश्चन जहाँ मागिची ताकू फ्रंट को आसिया दरकार। तुम पैराग्राफ लेख पॉइंट लेख किसी असुविधा नहीं। तो मत पचार मुझे नहीं ठीक अच्छे सब ठीक अच्छे बट ताकू तुम को वे रे प्रेजेंट करुच सब क्वेश्चन जी पचार मु पर्सनाल जी कहि पॉइंट रे लेखिकी ताकू डायग्राम फाइग्राम करके मत बेहतर लगे खाता पैराग्राफ अपेक्षा। पर्टिकुलर एसे कथा कहूच एसे मत भल लगे पर्सनाली कि पैराग्राफ हिसाब लिखा एसे को छाड़ीदेले बाकी सब्जेक्ट रे पॉइंट वाइज सहित डायग्राम सहित अलग अलग टेक्निक सहित देखिले खाता मत भल देखा जाए बुझी हो। आ जो नाली नील रंग चित्र करके समय हुए बाबू परीक्षा से सब जिनस को है तो लेख मना करा बट समय हुए परीक्षा नाली नील तक गारेबा सीधा हाइलाइट करदेव बेटा लेटर लिखिदेव तल छोट गारेटे टाणीदेव छोट गार मान तुम सबू लेटर तले गार टाण सी गोटे अड देखा एक्जाक्टली तुमको लगुच बहुत ये बड़ पॉइंट भैल्यूटर तो आखिरे पड़ा दरकार। पॉइंट टी खाली स्लाइटली गार पूरे मारे तो कथा सरला पूरा पूरा खाता जाक देखा तेणु जब सेमती पारुच डायग्राम मध्यम देखो जदि कौन इंपोर्टाट पॉइंट को तुम गोटे अलग वे देख मुझे कहला आंसर लिखा कौन गोटे प्रकार सिंगल फर्मुला ना जी हाँ ठीक कहूँ कौन सिंगल फर्मुला तुमको फॉर एग्जांपल तुम लिख कौन मनकर लिख कौन केते प्रकार रे कौन अच्छी मनकर बायोटिक एबायोटिक कथा लिख तुम ताकू पॉइंट न लिखी तुम लिखिदेव बायोटिक एबायोटिक दुईटा ग्राफ करदेव से भाया कथा है सब जिन चेष्टा कर बट यहाँ पॉजिटिव हवा दरकार बेले बेले ग्राफ करने चक्कर में फुल जिन ग्राफ कर सेटा ठीक नुह ग्राफ माध्यम लेख पॉइंट वाइज लेख ग्राफ साइड रे तीर मार देकी एमती लेख किसी असुविधा नहीं भल देखा दरकार कनसेप्ट को बाहर को आसवा दरकार जहाँ चाहूच तुम ना मन भर से बाहर को आसवा दरकार कम जगह भितर से धरी जा दरकार बाकी साइड रे दरकार पॉइंट आउट कर दियो दिस इज द आंसर बॉडी मेन कंटेंट ऑफ योर आंसर वुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स हे परिबो एजेंट्स फैक्ट एंड डाटा ता रिलेटेड किसी रिपोर्ट्स रे पढिछ। हां बाबू के कोन कहछ चलो ठीक है कहा माइक ऑन ऑन अच्छे ऑफ मार कहा माइक ऑन अच्छी ऑफ मार अरे भाई मैडम डाकू जमा दे शांता मैडम माइक खुला है सॉरी ओके 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 दे शांता है ना चलो ओके कथा है कौन तो फैक्ट दब डाटा दब फैक्ट डाटा कौट आने कहली जब कौन सब्जेक्ट लिखुच तो गूगल मार गूगल मारिकी न्यूज सेक्शन को फॉर एग्जांपल मनकर मुझे गूगल को जी मत कौ विषय जानवर अच्छी रशिया यूक्रेन वार यूक्रेन वार ये न्यूज अच्छी बाबू जानी थो समस्ते ये न्यूज अच्छी हालांकि ये बड़ा टॉपिक है तो 1000 न्यूज आस अलग कथा जो टॉपिक मारुच मार ये न्यूज रे जीव है न्यूज रे जीव तार न्यूज अच्छी कौन तुम जोड़िया कथा ताको पढ़िबो जोड़ी बहुत प्रकार पिलांगर डाउट अच्छी न्यूज कोड पाइबा ये वे रे न्यूज पाइब जे कौन टॉपिक रे लिखुछ ता अपडेट कौन है जीव गूगल को न्यूज मारिबो रिलेटेड या फिर तमे जो पढ़ुच योजना कुरुक्षेत्र अलग अलग सब मैगजीन पढ़ुच से मैगजीन में जहाँ पढ़ी से न्यूज कह जाए लेटेस्ट कथा रिसेंट कौन है प्रत्येक दिन मैगजीन छपा होनी जदि पूरा लेटेस्ट अपडेट चाहो गूगल तुम पाइज न्यूज है
ସାଇଟ୍ରେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିବ। ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲେ ତ ସାଇଟ୍ ନୁହଁ ନା, ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲେ ତମେ ଲେଖୁଛ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫ୍ରେମ୍ ଲାଗିବ ତ ସେ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିବ। डाटा इंटरनेशनल डाटा, यूनेस्को डाटा, वर्ल्ड बैंक डाटा, आरबीआई डाटा, नीति आयोग रे डाटा, ये सब डाटा को करंट अपडेट टूल कहउची जिनस को जोड़ी। ठीक अछि। प्रेजेंट डाटा यूज द रिलेवेंट फैक्ट डाटा एग्जांपल इंडिया स्पेसिफिक और तो ग्लोबल जो डेमती डाटा दरकार पड़ुची। इंडिया रे कहली नीति आयोग अलग अलग, आरबीआई अलग अलग सब संस्था बाहर करछंती हला, बा तुम जी करप्शन परसेप्शन इंडिया कथा कहउची, या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कथा कहउची, या फिर इंटरनेशनल लेवल यूनेस्को हमर ये रेड क्रॉस जो विभिन्न प्रकार सब डाटा माने बाहर करते तेणु से डाटा यूज कर भल डाटा ही दरकार। ता माने नहीं कि गोटे गाँव में बस कौन कहीदेला ता कथा लिखिदेवी ये एथिक्स रे गोटे गोटे पॉइंट लिखि पारि। समाज रे जहाँ चली फ्यूचर रे आलो अर्जन कौन कला ये सब जिनस एथिक्स रे गोटे गोटे पॉइंट री दरकार एकदम लिमिटेड सब भाव लार्जर गोड्स जिनसा दरकार कि नुह से भाव। एग्जांपल लिखो समाज मंगल से केते काम मत भल लगे पॉइंटा जे अर्जुन एमती हिरो गला पुष्पारे नाचिला तो भल लगे से लिखिदेवी से नुह समाज को कौन एक्चुअली पॉजिटिव सी दूची से जिनस जब ठीक ठाक किसी गोटे बड़ कथा अच्छी तो गोटे दुटा पॉइंट ताको एथिक्स पेपर रे जोड़ी पारिबो सेटा किसी असुविधा नहीं। ठीक है चलो and use heading or sub heading if needed। heading रे देला heading रे पुनी sub heading अछि मनकर नाले एमती लिखुछ एक लिखुछ एक नंबर पॉइंट एक क्या लिखला तापर तळे मनकर ता सब हेडिंग देला एक ए एक बी तापर मनकर सेकंड देला 2 नंबर हेडिंग 2 ए सब हेडिंग 2 बी 2 सी मनकर ए 2 ए रो पुनी आउटे बाहर पेला सब हेडिंग 2 ए आई बुझीगला ये दे दो सब हेडिंग बाहर ना विभिन्न प्रकार कथा रे किसी सब हेडिंग नहीं खाली पॉइंट चला 1 2 3 4 सब हेडिंग आसला एक पर ए एक पर बी एम चला मतलब बी रो गुटे आसीगला कौन आउरी सब हेडिंग एक बी आई हेडिंग हेला था ये दे दो किसी फर्मुला नहीं यार बाबू किसी फर्मुला नहीं मो अनुसार कहूँ तुम जोड़े जोड़ी दे पार किसी असुविधा नहीं। इफ नीडेड यूज द बुलेट पॉइंट द सब हेडिंग फॉर द क्लैरिटी स्पेशली फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन बुलेट पॉइंट यूज करिया कथा कहउछि कि हम जे कहली से दे दो बेस्ट है। लॉजिकल फ्लो जो कोहेरेंट कथा फास्ट कहउथि भाई कहउथि से जिंस लिखा है लॉजिकल फ्लो एंश्योर योर आर्गुमेंट आर लॉजिकली स्ट्रक्चर कथा लिखुच लॉजिकली से जिनसटा स्ट्रक्चर वे जाउछि कथा लॉजिकली कारण ना तुम तुम रहो ना ये सब बड़ कारण सेमती किछि लिखि ऐसे हो पेपर मध्य लॉजिक थिया दरकार। मूविंग फ्रॉम द वन पॉइंट टू द नेक्स्ट जते गुटे जगह रु आ गुटे जगह को जाउछो गुटे पैराग्राफ रु आ गुटे पैराग्राफ जाउ गुटे सेंटेंस रु आ गुटे सेंटेंस को जाउछो कोहेरेंट हवा दरकार माने मिसिबा दरकार कथाटा फ्लो रहबा दरकार फ्लो नाही किछि नाही हेडी पाकिस्तान नथले साहे इंडिया पहुंचियो तमिल पहुंचियो किछि न दरकार। देन कंक्लूजन कथा कहउछि कंक्लूड विथ ए ब्रीफ समरी सब इशू यात्रा लिखिलो ता ऊपर गोटे समरी दो पॉजिटिव माइंडेड नेगेटिव लिखिबनी युद्ध कथा लिखुछ ता भीतर भी पॉजिटिव अछि आमे जदी विश्व संस्था कि यूनाइटेड नेशन कि बाकी ग्रुप माने जदी सब भल से एक्चुअली मिसिबे ए जिंस को आमे बहुत सॉल्यूशन ले माने रशिया यूक्रेन युद्ध न करी मध्य कथावार्ता आमे सॉल्यूशन करि परिबा रीजनल मीटिंग हे परिबो तो बाकी जहाँ भी स्ट्रक्चर अच्छी से वे रे पॉजिटिवली दवा ना जदि रशिया माइला यूक्रेन को मारदेवा दरकार यूक्रेन कहीं छाड़ो थे छाड़ा रशिया को सेकेंड थर रशिया पुणी अटाक कर नाटो बढ़े देवा दरकार एपटे रशिया आहरी तार मिलिटारी आर्मी को बढ़िया दरकार लिखनी पॉजिटिवली कनक्लूड कर समाज मुझे कहली ना फास्ट भाव समाज कल्याण काम कर तुम एनसार रे फ्लो हवा दरकार समाज तुम सब भल तुम चिंताधारा ही भल सतरे तुम माइंड से हवा दरकार डिस्ट्रक्टिव ने कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन एथिक्स पचार दो तुम किए बंधुक धरी ठिया तुम मार एकदम पूरा गोली फुटिया तुम मार ना मारे तुम ये कौट कंस्ट्रक्टिव कर अलग कथा एथिक्स क्वेश्चन पकाए पढ़ा पढ़ेगा मैडम कहते कौन जिन
बट नॉर्मल क्वेश्चन कथा को आउची पॉजिटिवली जो conclude with the brief summary offering solution of future perspective. If the question is demand, keep it precise, avoid the introducing the new point in the conclusion. एकदम conclusion ले तमे पूरा एकदम एटा दबंग बाहरी सेमती हेनी क्या लिखा था बॉडी लिखी सारी कंक्लूजन नुआ कथा न लिखिक जो कथा लिखिच से कथा कंक्लूड करिया कथा कह नुआ माने आइडिया कथा कह सब नुआ कथा कहनी नुआ आइडिया गोटे कंक्लूजन लिखिदेल नुआ आइडिया नुहे आइडिया सब बॉडी लिख कंक्लूजन ताको जस्ट समराइज करदे अच्छा यही कथा गुड़ा समराइज कर पॉजिटिवली नोट माने एमती हवा दरकार एमती ना सॉल्यूशन हो पारिबो सॉल्यूशन हो पारिबो सब जिन सॉल्यूशन अछि करप्शन कथा कहउछि करप्शन भी सॉल्यूशन लिखियो कारण तमे बाबू सिविल सर्विस हवा जाऊँ सिविल सर्वेंट तुमको सॉल्यूशन मगा जीव प्रॉब्लम रो छाड़ी आसी परिबो न तुम माइंड लास्ट रे सॉल्यूशन आड़ी की जीवा दरकार बुझली सॉल्यूशन आड़ी जीवा दरकार बी कंसाइज एंड फोकस्ड बी कंसाइज एंड फोकस्ड वार्ड लिमिट कथा कहउछि वार्ड लिमिट माने मु कहली जो कथा सेटा गणिया किसी आवश्यकता नहीं गोटे पेज दी पेज कौन लिखुछ सेटा लिखिक प्रैक्टिस कर दबा आगु ज्यादा तो 10 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क लिखियो पड़े 15 मार्क क्वेश्चन ले तुम 3 पेज लिखा पड़े ये टाइप भाविक चल तो 7 मिनिट पाखापाखि तुमको 10 मार्क क्वेश्चन सारा पड़ो आमर 11-12 मिनिट रे तुमको 15 मार्क क्वेश्चन सारा पड़ो ये तुम लिखिक प्रैक्टिस कर बाकी हो गोटे टी अधिका लगे पारे भाव पड़ पारे ना गोटे टी जल्दी सारी पारे तुम नोट अनुसार पड़ जाइए तो यह सब जिन पढ़ना टे रही वार्ड गणिबनी पेज अनुसार लिखुचे इट्स ओके वार्ड गण वार्ड कमी गण डायग्राम कल कि वार्ड गणी पार वार्ड किसी गणा हेनी तुम गोटे ओभरअल दिखाई कथा राइट द राइटिंग द विदिन द लिमिट विदिन लिमिट माने तमें माने पढ़ी गई पूरा गोटे क्वेश्चन पूरा एकदम 8-10 हालांकि पेज लिमिटेशन जे लिखिपार अधिका से लिमिटेशन अच्छे पेज ये पेज तो सारे पड़ो तेणु किसी असुविधा नहीं तो आराम से लिखिपार राइटिंग द विदिन द वर्ड लिमिट एनश्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्पेस ऑन इरेलेवेंट कंटेंट समय बर्बाद करनी यूपीएससी कि ओपीएससी जगह तुम देती परीक्षा खाता भी वेस्ट कर प्रॉपर जिनस प्रॉपर टाइमिंग रे लिखिक सारी कथा जी हाँ क्लारिटी कथा कहूँ गोटे वार्ड मन पड़ा मुझे कही देख पिला बेसी भावती बेले भावती मु बोमास्टिक वार्ड लिखिदेवी इंग्राजी डिफिकल्ट वार्ड जोड़ा भैल्यूटर भाव ना ये भल इंग्राजी जानची भल कथा बनइबन ना बिल्कुल से नुह सिंपल वार्ड लिख चाहूँ तुम ठार आइडिया चाहूँ क्वेश्चन ले आइडिया चाहूँ इंग्राजी नॉलेज चाहूनी तुम इंग्राजी नॉलेज चाहूनी चाहूँ कनसेप्ट ना ये कनसेप्ट टाक तुम के सॉल्यूशन कर से जिन चाहूँ केमी प्रॉपर वे रे रिजल्ट दब इंग्राजी बड़ बड़ वार्ड से जिन देखा एक्सप्रेस योर आइडिया क्लियरली एंड कंसाइज क्लियरली एवॉइड जार्गन और ओवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जार्गन माने पकईला क्वेश्चन जार्गन माने कौन कह जार्गन आदर पकईला सी साइड रे कि हमर एथिरे सर ग्रुप ऑफ पीपल जो लैंग्वेज टा यूज करन सर पर्टिकुलर से ग्रुप माने बुझ परिए पर्टिकुलर माने डॉक्टर कथा डॉक्टर्स माने कहबे ना एटा सीयूपीडी डिजीज थिला सीयूपीडी पेशेंट को जाना पड़िबनी जे जानि थोला कथा सीयूपीडी ब्रोंकाइटिस रिलेटेड डिजीज से डॉक्टर माने यूज करिए त लोग तो जानि परिबनी अलग था बायोलॉजी जानी अलग था बट जनरल से तो जार्गन को से भाया किसी वार्ड यूज कर परीक्षा खाता तुम मन कर एसे ना एसे लिखुच पेपर एसे नॉर्मल आर्ट्स लोक गोटे देखुच तुम से पूरा बायोलॉजिकल वार्ड को हेवी यूज कर कारण कौन तुम बायोलॉजी स्टूडेंट पीएचडी कर बायोलॉजी या फिर मेडिकल स्टूडेंट तुम डॉक्टर जन अच्छ तुम वार्ड को यूज कर सीयूपीडी डिजीज है थैलासेमिया तुम जो स्टेज 1 स्टेज 2 डायबिटीज वार्ड से यूज कर चल मुंड गरम भी करप्शन लिखुची एसे पॉल्यूशन लिखुची ये सब कथा से बुझीपर
ସେ ନ ବୁଝିପାରିବନି ତମେ ଭାବନି ଯେ ନାଇଁ ପୁରା ଏକଦମ ମୋ ଖାତା ମାନେ ଆସିକି 4-5ଟା ଡକ୍ଟର ଏଠି ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନା ବିଲକୁଲ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଯୋଉଟା ଇତିହାସ ସେଟା ଇତିହାସ ମାଷ୍ଟର ଦେଖିବ, ଯୋଉଟା ରଚନା ସେଟା ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଦେଖିବ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ମାଷ୍ଟର ଦେଖିବ। ତମ ୱାର୍ଡ ସୁଡ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତମେ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବାବୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ସେ ମନେ ରଖ, ଯିଏ ମନେକର ଜିଓଗ୍ରାଫି ତମ ଖାତା ଦେଖୁଛି ନା, ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ଅଛି, ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢଉଛି, ତାର ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଟିକି ଟିକି ଜିନିଷ ତାକୁ ଜଣା ଅଛି। ତମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ତାକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ନୂଆ କଥା ଆଜି ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଲକୁଲ ସେଇଆ ନୁହଁ। ତମେ ଆଗେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦିଅ ଖାଲି, ତାକୁ ଜଣେଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଏ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛି, 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଜଣେଇବାର କିଛି ଆଉ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ପକେଇଛି ତମେ କେତେ ଜାଣିଛ ଖାଲି ସେଟା ଲେଖିଦିଅ, ବାସ୍ ଏତିକି ଭାବିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଭଲସେ ଲେଖିଦିଏ। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲାଗିଲା କି ଭାଇ ସାହେବ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହଉ ସେ ୱାର୍ଡର ମିନିଂ କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖିଦିଅ। ଯଦି ତମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେଟା ଜାର୍ଗନ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କଲ, ତାକୁ ବ୍ରେକେଟ୍ ମାରିକି ସାଇଡ୍ରେ ତ ଲେଖିଦବ ଆ ମିନିଂ ହେଲା ଏଇଆ ଏଇଆ, ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଆର ଏଇଆ। ଏକ୍ସେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବନି। ଓକେ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ ପିଏଚଡି କରୁନ ତମେ, ଇଂରାଜୀ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପେପର ଅଛି ସେଠି ଚାହିଁବ ଇଂରାଜୀ ରିଲେଟେଡ୍ କଥା ଲେଖିପାର, ଏଠି ନର୍ମାଲ ପେପର ନୁହଁ। ଏଭଏଡ୍ ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ, କ'ଣ କଥା? ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନେସେସରି ଟୁ ଦ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଡେଭିଏଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟପିକ୍। ପଚରା ହେଇଛି କିଛି ଗୋଟେ କଥା, ତମେ ଯାଇ କୋଉଠୁ ଧରିଲେଣି, ମନ ଉପରେ କି ରାଜା ନାହାନ୍ତି ନା। ବଟ୍ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ ସେଟା ମ୍ୟାଟର। ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କାହାକୁ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ସେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକା ଜାଣେ? ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛୁ, ଅଧିକା ଜାଣିଛୁ। ଆମକୁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଗା ହେଇଛି ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିବା। ୟୁଜ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଚାର୍ଟ, ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ପିଲା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଛି ଅନନେସେସରି ଜାଗାରେ କରିଦିଅନ୍ତି, ନେସେସରି ଜାଗାରେ କରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଦିଅ, ଖାତାରେ ଯେମିତି କରିଛ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ या फिर ଡାଇଗ୍ରାମ, ସେଇ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଠି ନୂଆ କିଛି କରିଦେବି ସେମିତି କରାନି, ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ମେନ୍ସ ପେପର ନା, ଯାହା ଅଲରେଡି ଲେଖିଛ ତାକେ ଲେଖ ଯାଇ, ନୂଆ ଏଠି ଭାବନି। ହଁ, ଓନ୍ଲି ଏଡିସନ୍ ଡିଲିସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଭାବ, ମାନେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିଲି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଲଗା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି ଲେଖିବି, ବାକି ଲେଖିବି ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହବନି। ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏଇ ବନେଇଛୁ ନିଜେ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ତମେ କରିପାରିବ, ଯୋଡ଼ିବ ୟା ଫିର କାଟିବ, ଏତିକି କାମ କରିପାରିବ। ହେଲା କଥା। ଅନନେସେସରି ଜିନିଷ ଯେତିକି ଦରକାର, କିମ୍ବା ପଢ଼େଇ ଚାଲିବି ଇଂରାଜୀରେ ଖାଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିକି ସେ କିଛି ଫାଇଦା କହିଲା, ଗ୍ରାମାର ଭୁଲ ଲେଖିଲେ 100% ଏଟା ଭାଇବୁଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଡେଭିଏଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟପିକ୍, ଟପିକ୍ରେ ରହିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମାଗିଛି ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମ ମନ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବିଲକୁଲ ଯିବ ନାହିଁ। କେତେ ବୁଝିଥିବ ଏଇଟା, ବିଶେଷ କରିକି ଏସେରେ ଏଥିକ୍ସରେ ପିଲା ଜଣାନି କ'ଣ ଲେଖିକି ଚାଲନ୍ତି। क्वेश्चन तो मौका दिए नहीं जनरली, एसपीएससी एत मौका मिले नहीं तुमको, मिल जाए तो मौका कौटी एथिक्स रे एसे ऑप्शनल पेपर बेले बेले मिल जाए, जे सोशियोलॉजी वगैरह नेला या फिर एंथ्रोपोलॉजी नेला, थ्योरिटिकल पेपर जे नेला, एमएल जे नेला, ओडिया नेला, ताकू मौका मिल जाए लिखिया पे आगु जे कंट्रोल करबा हला। भावना पे रुक लगाना थोड़ा। विजुअल एड्स कथा को हाउ डायग्राम फ्लो चार्ट कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस योर आंसर। अननेसेसरी जगह करबो ना, कथा कहले भूल भाल हे जिवो, दरकार कथा डायग्राम हेले चालू को ना जे चेक करथो जे जानि पड़थो, मु एडो फील करि पड़छि, देखिया लोक ना हमर करा 10 लाइन लिखि दा, डायग्राम कर देकी लिखि देला दीटा वर्ड सेंटेंस खाली तक तीर देकी, जेति मते इजियर हो मु कथा बुझी परिबी। 10 लाइन हेले मु से पढी थान, 10 लाइन पढी थान, तापर तुमको भाबी थांती कोन हो कोन नै, एटी मु डायग्राम खाली देखि देली जानि पइली ए कथा पिला लिखि छी इजियर। तो परीक्षा हॉल ले सेटा तुम करि परिबी, प्रैक्टिस मूलर करि इजी जिंस। डायग्राम छोट मोट समस्त बनौतले चार्ट वगैरह, इजी जिंस ताको जहाँ କରିଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି ଲେଖିବ, ସେଇ ପାରିବନି
भूलभाल हम समय जीव से खाता कटाकुटी हम से बहुत असुविधा स्टार्टिंग रू प्रैक्टिस घरे करिक जीव बट एटा भल कहली ना देखुवा लोक घरे भारी इजी लगे माइंड फ्रेश लगे पाखर जी बस्तु जन खाता देखुव तार जदि घंटार 5टा खाता सरुची ये लोक घंटार 10टा खाता सारद खुशी हो ना टे पचार तो सार आप कौन एमती लगे जल्दी जल्दी खाता सरुची भाई आज मुझे तेज रे कारण पिला लिखी ठीक ठाक डायग्राम बन मजा लगुच सब खाता से लिखी न था पिला अलग कथा कथा कह गोटे एग्जाम्पल में visual diagram or a flowchart can significantly enhance your answer, especially the questions related to the process, structure, data interpretation. Theory part को भी करी हो flowchart रे अभी बटी मेंटली एते किसी नाही सॉल्यूशन नाही भाबे ना सार के सॉल्यूशन दे सार के सॉल्यूशन नाही हमें आंसर टा को जेते रंगीन करी परिबो सेते रंगीन होबो भाबिया दरकार ठीक है बट फास्ट थोड़ा जी लिखुछ तमे आंसर लिखि दियो आपने तो रिवाइज करुच तुम भाभी दियो कि भाई साहब अच्छा ये मुझे चाहिए तो फ्लूचार्ट एमती करी पारंती फ्लूचार्ट करने एकदम पूरा बसी जाओनी घंटा घंटा धरी असुविधा समय जी लिखी दिए जहाँ लिखा था रिविजन कला बेले से देख अच्छा फ्लूचार्ट तो हो पारंता ए भलसे लगता सल्यूशन किसी ना सल्यूशन किसी ना जे जमी करेंगे ठीक diagram or the flowchart can significantly enhance your answer, especially the question related to the process irrelated. Then level correctly. Ensure diagram are neat, each part is the appropriate level. You should गुलिया बोले से गुलिया रे मीनिंग कौन ग्राफ काटी से ग्राफ रो मीनिंग कौन प्रॉब्लम जाउची ट्री डायग्राम ऊपर कौन थिला तळे कौन थिला गारा कोट मारी छ केता फाइड ई सब जिंस बट ताको ध्यान यूज ऑफ एग्जांपल कथा कहू रिलेवेंट एग्जांपल ऑलवेज substantiate your answer your argument with the appropriate example कहले ना गरीब कमुचंती गरीब कमुचंती केमती हला तुमको पॉवर्टी डाटा देखिया पड़ो 2019 रे एतिक थिला 2024 रे एतिक पहुंची किए कहूची नीति कहूची डाटाटा देले ठीक आ तुमको ना कमुची कमुची मान ये तो प्रथम जन छुआ लिखिबे विषय नवीन आसते भल काम कले गरीब कमुची कमुची किसी फायदा नहीं डाटा कौन नीति आयोग डाटा 2023-24 रे रिलीज करिछि 2019 रे पॉवर्टी लाइन 23% थिला एबे सेटा कमी कि 14% हेछि काम खत्म लिखे रिलेवेंट एग्जांपल प्रिपेयर्ड एग्जांपल स्पेशल फॉर द करंट अफेयर्स रिपोर्ट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स यूज द स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द इंडिया दे आर जनरली मोर वैल्यूड मानकर गरीब कथा लिखुछ तुम लिख ना अमेरिका रे गरीब कमी छथि कोन फायदा इंडिया रे लिखिबो केते परसेंट कमी छथि ओडिसा रे तमे जेहेतु ओडिसा एग्जाम दो ओडिसा लिख दो तावर छंच स्पेसिफिक तो ना अमेरिका रे वाशिंगटन डीसी रे एति कमी थे कोन फायदा जेटू तो वर्ल्ड लेवल ओजोन लेयर कथा किछि लिखुछ तो ओजोन लेयर रे कोन कहिथिला कोन से मॉन्ट्रियल कि बाकी जिनसे किगाली एग्रीमेंट इस जिनस तुम लिखि पार तो सेंस डाटा सेट हुई काढियो गरीब कथा लिखुछ सेक्स रेशियो कथा लिखुछ इंडिया डाटा लिखिबो ओडिसा डाटा लिखिबो एजुकेशन कथा लिखुछ इंडिया डाटा लिखिबो ओडिसा डाटा लिखिबो एनवायरनमेंट ऊपर लिखुछ किछि इंटरनेशनल रिलेशन लिखुछ किबा यूनेस्को कथा लिखुछ तो डाटा ताकर न वो कथा एभला ताकर जे हेड ऑफिस अछि किबा ताकर जो बड़ा बापा मान अछंती ताको पाखु डाटा न रिसेंट डाटा न ता माने 15 वर्ष तले डाटा दिला से डाटा माने एटी हिसाब बेटा ना क्षेत्र हबनी रिसेंट डाटा कोन देखिए मसीहा 2023-24 डाटा लिखियो एक्जाक्टली लिखियो 2023-24 डाटा देन लोकलाइज एग्जांपल आर एप्लीकेबल यूज एग्जांपल्स आर रिलेवेंट टू द इंडियन कंटेक्स्ट एग्जांपल ओडिसा कथा कहउजी माइनिंग कथा तुम सेक्टर एग्जांपल नहीं पारे फॉर एग्जांपल तुम सुकिंदा एरिया रे पानी कंटामिनेशन होची ड्यू टू माइनिंग कथा कहउता नहीं पारियो टूरिस्ट सेक्टर रे तुम गुप्तेश्वर कथा कोरापुट नहीं पार बायोस्फीयर रिजर्व कथा कहूँ तुम जो मेन एंड बायोस्फीयर शिमिलपाल कथा लिखिपर लोकल एग्जांपल लब कि आहरी तुमको क्या सुनने पे सुहाग है 4 चांद लग जाएंगे देन इनकॉर्पोरेट क्रिटिकल थिंकिंग
incorporate critical thinking, multiple perspective, demonstrate ability to approach the question from multiple angle. अलग angle भावियो, अलग angle इवेले कौन ही परिबो, इवेले कौन ही अलग angle, society रो कौन, healthcare रो कौन, economics रो कौन आसी, scientific रो कौन रोज, different angle. ऐसे पैसे लिखले तमर आपे माइंड चारियाडे बुलिया स्टार्ट हो, लेखुन होले सेटा नथबो या फिर लेखुथबो तो होत. Analyze the pros and cons of the present both side of the argument. Argument of both side. Conclusion है तथा को argument of both side. Critical evaluation. Critical evaluation. तम माइंड कौन चल. Critical evaluation ना तमे कौन. तो तमे कौन जुड़ा ही परियो कौन. क्या एक्सट्रेस ही परियो. Where appropriate, critically examine the concept of the theory, provide the balance view. Critically examine कथा कौन balance view. The end. नॉर्मल लगे एकदम पट्टू को तमें ढली पड़ो सेमती हम गौतम बुद्ध जमी कही मिडिल तमें बाहर जावा दरकार दिमाग टे लगे दरकार मो पर्सनाल कौन फिलिंग्स अच्छी कौन ना से अलग कथा बालांस रखिकी लिखिदेवा दरकार. Then come to the language presentation. Use simple and precise language. कहली jargon फ्रेगन यूज करि परिबो नाही ना माने करिवोनी जति कोठी कोन इंपोर्टेंट जिंस दरकार हो जो कहली एड दबो तार फॉन्ट लिखि दबो या फिर तार मीनिंग शॉर्ट मीनिंग पूरा एकदम इजी लैंग्वेज रे लिखि दबो. दरकार पड़तो अरे तमे दी जानि छ जी परिबोनी एटा शॉर्ट तार तार जो कोन सिंपल मीनिंग लिखिबो काई डिफिकल्ट ला पारिबो किछ गोटे तुमको लागु ना एथरे एक्चुअली न्यूज रे थिला लिखे दरकार मो खाता प्रति वैल्यूएबल मिलियो ताको ब्रैकेट लिखि दबो पुनी मास्टर भाई ना सब जिन जना अछि कथा जना अछि प्लस जना अछि. Avoid complicated word. Your primary focus should be clarity and precision. Clarity दबा दरकार भीतर कम जगह भीतर. Then legibility. Write legibly and neatly. पूरा This examiner appreciate the neat and organized script. परिश्रम दरकार न नेंद्रा मेंद्रा करी से लिखि दियो से लाउल खाता ता मुंडो गरम छै लिखिबन एकदम नीट एंड क्लीन लिखि. हैंड राइटिंग फाइल कंटेंट इज की माने ले कंटेंट की तमे जोटा लिखु छ ना सेटा एक्चुअली तमर मुख्य जिंस तथापि गुड हैंड राइटिंग हेले भला जदि नाही त कोन करबे हैंड राइटिंग तो सिखि परिबो ना पुनी ताको टिके बड़ करी लिखि कि बाकी डायग्राम को ध्यान दे सुन बड़ ने पेन धरिबा स्टाइल टिके लिखिबो लेखा प्रैक्टिस करिवो समय लिखली हाथ बथा न होउची लेखा करे प्रैक्टिस एडा सब हेले हैंड राइटिंग इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड लीव द पॉजिटिव इंप्रेशन. टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ जिंस प्रैक्टिस दरकार घरे. आंसर एट द टाइम्ड मैनर मु कहली 10 मिनिट 10 मार्क या पाखा पाखी क्वेश्चन तुमको 7 मिनिट्स रे कंप्लीट करिया पड़िबो. 15 मार्क या पाखा पाखी तुमको लगभग 12 11 12 मिनिट से आंसर बाकी सब जिंस मार्क हिसाब कर दियो. यू हैव टू कैलकुलेट. प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एलोकेटेड टाइम 7-8 मिनिट्स पर क्वेश्चन इन द मेंस 10 मार्क क्वेश्चन. Help the manage your exam perfectly. Priority question start with the question you are comfortable zone or confident about. कहि दिल ऑलरेडी पूर्व कॉन्फिडेंट আছে तुम लागु जेटा बढ़ी के आसी पढ़े चलो एकदम लेखि चल हां तो भाबिया ने राइटर पिला कोन लिखुची कोन नाही कोन भाबुची जस्ट फॉरगेट है. By answering easier question fast can boost your morale. Let's body you anxiety धीरे धीरे कम आपने ना डिफिकल्ट माने आसी लेखि जाल जो ना लास्ट हो जाऊ छु मन भीतर खुशी आसतो यार जबर देखिलु हैं तने मु कहूची चलो चलो प्रीलिम्स रे जणा पड़े नो प्रीलिम्स रे ठीक बोलना तमे जते जाकर कि जणा पड़ी मेंस रे तुम जणा पड़ी लेखिले बोले तुम उठे मजा आसे. हां को ଆମେ ତା ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟାଇମ୍ ଟାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା ୱାର୍ଡ ଉପରେ ମାନେ 7 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଠି 7 ମିନିଟ୍ ହବା ଦରକାର 120 ୱାର୍ଡ ହେଇଯିବ ହେରେ 150 ୱାର୍ଡ ହେଇନି ତା ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ କୁ ସାର୍. ना 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 देखो 7 मिनिट एवरेज ऑन एन एवरेज कथा को आउची जदि ए 7 मिनिट भितर सरी पन्ने आ 2 मिनिट दरकार दे देबी तो आरो क्वेश्चन को जोटा 7 मिनिट आराटा थिला सेटा 5 मिनिट भीतर सरी जाय पारे मे भी सेटा भलो प्रिपरेशन करके आस्थि जल्दी जल्दी लिखि देबी एटा टिके भाबियो पड़ला 7 मिनिट जागर 8 मिनिट 9 मिनिट हे गला
तार क्वेश्चन पूरा एकदम प्राक्टिस कर देई जाइछि तो छाड़िबनी क्वेश्चन लेखिला बेले छाड़िबनी बट सब क्वेश्चन लेंदी हेले केमति एटा थ्रू मॉक रे हमरा प्रैक्टिस करियो कि अच्छा मो ओवरऑली पूरा कंप्लीट कला बेलको केते होमवर्क जाउछि केते टिके बढ़ियो केते टिके कमियो केते बढ़ियो केते टिके कमियो ହେଲା तमे जेमिति प्रिलिम्स रा छाड़ी देलो क्वेश्चन बा छाड़ी दउछन पिला मेंस तो क्वेश्चन छाड़ियो ना मेंस रे सब क्वेश्चन लिखियो पड़ियो कोटा भल लिखे कोटा खराब लिखे सेटा अलगा था वो लिखियो पड़ियो मेंस लास्ट लास्ट जोटा जानना सेटा कम लिखियो टी कारण तुम जानना जगी छगी लिखियो तो टाइम बंचियो ना बुझले Okay, sir. Okay, sir. So the handwriting, okay, time management, answer the timely manner, practice writing answer within the allocation time, prioritize question and start question with the जोटा confident also. Then use quotation theories कौन कहते नेल्सन मंडेला कौन कहते महात्मा गांधी कौन कहते विवेकानंद ये वगैरह वगैरह कथा लिखे महाभारत रे या कथा लिखाई रामचंद्र या कहले कि विष्णु ना कथा ना कौन तो या कहले रिलेवेंट कोटेशन है भल कोटेशन लिखो एपीजे अब्दुल कलाम नियो बाकी तुम महात्मा गांधी नियो विवेकानंद बिना कंट्रोवर्सी वाला आइडिया उठाओ एपीजे अब्दुल कलाम बिना कंट्रोवर्सी वाला गांधी नब देखी दिखाई नब गांधी कंट्रोवर्सी भी भल गांधी भल तथा किसी कंट्रोवर्सी अच्छी कंट्रोवर्सी गुड़ा नबन बाकी नॉर्मल कथा ना नियो मंडेला नियो से भी कंट्रोवर्सी बट स्टिल नियो पॉलिटिकल लीडर लेला देखी न कार्ल मार्क्स वगैरह कंट्रोवर्सी पर तथा भी नहीं रिलेटेड प्रायोरिटाइज तुम तुम एथिक्स पढ़ो ना एथिक्स पढ़ला बेले जो कोटेशन तुम कहब अच्छी सिलेबस चिंता कर ये कौन कही क्या कथा कौटी मिसेब से एथिक्स अच्छी तुम कहब हाउ तो कोटेशन मानी कौट मन इच्छा कौन तैयारी करदेवी ना तैयारी करनी अच्छी prioritize question start with a question with a comfortable zone so relevant question quotes well known thinker leader reports UN report United Nations या फिर World Bank वगैरह वगैरह answer make sure the quote correctly attributed and adds the meaning of your answer एटा भारी बड़ा कथा मन इच्छा से लिखि देबो मैं जो कोटटा जोठी लेखुज सेटा से जगह फिट हेबा दरकार पढ़ी के आस्तिल कोन हेला सेटू गुड पर से लिखि देबो कि ना न लिखिया ठीक मो मत जोटा फिट हो जोटि से जगह से लिखी फिट हो फिट ना तो मन इच्छा पढ़ी आस जोट पाई से जबरदस्त घुसेब से ठीक नेगेटिव दबाई philosophical or theoretical framework when necessary you can mention theories model and apply the question such as the Marxism Karl Marx कथा हुआ theology and new liberalism कथा हुआ leftist rightist middle centralism पढ़ा हो तुमको एटा याकू भी एग्जांपल मध्य अपडेटेड विथ द करंट अफेयर्स मु कहली करंट अफेयर्स को केमिति अपडेट करियो गूगल सर बेस्ट मीडियम अछि या फिर अलगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे सेटा क्लियरली पाइबनी गूगल आई थिंक बेस्ट सोर्स गूगल पाइ परियो बस तुम्हारा रिपोर्ट रो पाइ परियो सब जो विभिन्न प्रकार रिपोर्ट आछि से रिपोर्ट रो पाइ परियो बा तुम्हारा मैगजीन जो पीआईबी हे गला तुम्हारा कुरुक्षेत्र हे गला योजना हे गला local institute जो current affair magazine आनुछन that is the best source for getting the current affairs for your long type answer एटु पाई परियो असंभव किछि न पाइबनी बोली किछि न सोर्स अछि गुडा प्रैक्टिस रेगुलरली कोर्स रिवीजन टा बहुत बड़ जिंस क्वेश्चन लिखि मो मतरे 50 टा क्वेश्चन 100 टा क्वेश्चन खाली लिखि देकी परीक्षा जीवा अपेक्षा 50 टा क्वेश्चन लेखो ताकू 5 थर प्रैक्टिस करो मो पर्सनल मतरे भलो कहते ना नहीं कोर्स सरुनी कोर्स सरिया मैटर नहीं ये पढ़े से लिखि पारिया दरकार हालांकि कोर्स मो मत सरिया दरकार बट प्रैक्टिस दरकार जानी से 100% प्रैक्टिस कर जाओ सेटा रेगुलरली मॉक राइटिंग कथा कहूँ मॉक राइटिंग माने तुम निजे क्वेश्चन नहीं गयो 5टा 10टा कवाट बंद कर दियो टाइमर ऑन कर दियो टाइमर ऑन घंटा तो देख लो 10टा बेले बसलो से अनुसार घंटा 3 घंटा के समय हो देखिदेव बसी चल एवॉइड कॉमन मिस्टेक रिपीटेशन एवॉइड रिपीटिंग द सेम पॉइंट इनफॉर्मेशन ये बहुत पिला करन वो गोटे दुटा पॉइंट यदि मुंडे पशि जाइए से गोटे दुटा पॉइंट को परीक्षा सारा भाई लिखी चलती भाई से पॉइंट हटे
ଲେଖିଦେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା କଥା ସେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲେ ସେ ଏକ୍ସାମିନର ଯିଏ ବୋରିଂ ହବନି କହିବ ଏଇ ପିଲାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିକି ସେଇଟାକୁ ଲେଖୁଛି ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉ ନହେଲେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହଉ ବଗେରା ବଗେରା ତମେ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ନବନି ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଯେଠି ଦରକାର ଲେଖିଦେବ ଖାଲି ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ରିପିଟ୍ ମାରିବନି ସେ କୋଟେସନ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଡାଟା ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ବଗେରା ହଜାର ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡାଟା ଅଛି irrelevant content do not stay away from the main topic write the relevant content କୋଉଟା ମାଗିଛି ଆନ୍ସର ଲେଖ ତମେ ଯେଟା ଜାଣିଛ ସେଟା ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯୋଉଟା ପକେଇଛି ତମେ ସେଟା ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଗଲା ତମର ଜବରଦସ୍ତ যেটা ପକେଇଛି ତମେ ନ ଜାଣିଛ ଯଦି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହିସାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ନଟ୍ ତମ ହିସାବରେ ଓଭର ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍ ହେଲା କଥା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଆ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେୟା ମତେ କଥା ବଡ଼ ନୁହଁ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଦରକାର ସୋସାଇଟି କ'ଣ ଦରକାର ତମେ ଯେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଜନତା କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ସମାଜ କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କୋଉଥିରେ ରହିବ ସରକାର କେମିତି ଚାଲିପାରିବ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ପୁରା ଏକଦମ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପୁରା ସବୁ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା 16 ଲାଇନ୍ ରୁଟ୍ ହେଇଯାଉ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ରୁଟ୍ 16 ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉ ସେ ଥିବା ଦରକାର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ସ୍କିଲ୍ କେମିତି ଚାଲିବ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନା ଜେନୁଇନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି କେତେ କୋଉ ହେଡ୍ରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ପଇସା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ସରକାରକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଏଇ ସବୁ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଖାଲି ତ କହିଦେଲେ ନାହିଁ ମତେ ଦରକାର ସବୁ ଚିକାଚିକ ଆମେରିକା ଭଳିଆ ରୁଟ୍ ହେଇଯିବନି ନା ସେ କଥା ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍ ବଡ଼ କଥା ନା ଯାହା ପଢ଼ିଲ ସେଇଟାକୁ ଭାବ ପଢ଼ିଲ ସେଇଟାକୁ ଭାବିକି ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆ ବନାଅ ଏଇଟା ଭାରି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍ ହବା କଥା ନୁହଁ ଖରାପ କାରଣ ତମେ ଯଦି ଏଠି ଲେଖିଦେବ ନା ଖାତାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କଟିଯିବ କାରଣ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍କୁ ବନାଅ ତାର ଅନୁସାରେ ଯେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତମ ନିଜକୁ ତିଆରି କର ନାଇଁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ତୁମକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ସେଇଭଳିଆ ରଖିବାକୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ତେବେ ଯାଇକି ତମ ଯେଉଁ ଓପିନିଅନ୍ ଗୁଡ଼ା ନା ସେଗୁଡ଼ା ଆସିବ ପବ୍ଲିକ ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିବ ପର୍ସନାଲ ଆସିବ ଆମ ଘର ମନେକର ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଇଆ ବାଲେଶ୍ୱର ସେୟା ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇଆ ସୁରରେ ଏଇଆ ଇଏ ସେୟା ସେ ଭାବିବ ନାହିଁ ସାର୍ ଭାରି ମାନେ ଲୋକାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବ ତାକୁ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯେଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ କଥା ଅଲଗା ଲୋକକୁ ବି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ମାନିକି ଚାଲ ଅନୁସାରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଦ୍ଧାରି ହେବା ଦରକାର କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଚଳିବ ଏକ୍ସେସ୍ ନେବା ଦରକାର come to the conclusion effective answer writing is the art of the combined knowledge art ଲେଖା କୋଉ ଟିଚର ଶିଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କଳା ରାଇଟିଂ ଗୋଟେ କଳା ବାବୁ କଥା ଶୁଣ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେନ ପିଆନୋ ଫିଆନୋ ବଜାଉଛ ଗୋଟେ କଳା ରାଇଟିଂ କଳା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ତମେ ଲେଖିଦେବ ଲେଖିଲେ ବି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ସେଟା ବୁଝି ହେଉଛି କାରଣ ତମେ ଯଦି ଲେଖିଦେବ ନା ମୁଁ ନ ଲେଖିଲେ ବି ତମେ ଲେଖିଦେବ ବଡ଼ିରେ ଲେଖା ହବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବ କେମିତି ଲେଖିଦେଇକି ଏମିତି ଲେଖିଦେଇକି ମଝିରେ ତାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବ ଡାଇଗ୍ରାମ ଖାଲି କରିଦେଇକି ଦେଖିଦେବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଇଏ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ କୌଣସି କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଆର୍ ନାହିଁ ବାବୁ କେହି ଦେବେନି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ ଏମିତି ତମେ ଲାଗିବ ଜାଗା ଏତିକି ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋତେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଶୋ କରିବାର ଅଛି ହାଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର କାମ ଖତମ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯୋଡ଼ିବି ରିପୋର୍ଟର ଡାଟା ଯୋଡ଼ିବି ଆନ୍ସର କେମିତି ହେବ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଦେଲେ ଶୁଣିଦେଲେ ହେଇଯିବ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ମୁଁ କହିଲି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଡ଼ କର ତାକୁ ରିଭିଜନ କର 5 ଥର ଦେନ୍ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଯିବ ଅପେକ୍ଷା କାରଣ ଲେଖିପାରିବ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ରିଭିଜନ ହେଇଥିବ ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ସିଧା କଥା by practicing this strategy you can improve your chance of writing high quality answers so that score will UPSC exam will be more and you will get the job ରଖିବି ବାକି ଏଇଠୁ କ୍ଲାସରେ